الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. بے شمار درود اور سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں خوشی کا یہ سجدہ بجا لائے. یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی کے لیے طے شدہ دن ہے. اس دن کو ہر انسان خوشی کے ذریعے سے ہی مناتا ہے اور اسے منانا چاہیے الا یہ کہ کوئی خاص وجہ ہو. ہم نے اس ماہ مبارک کو اس طرح سے گزارا ہے، اس میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہوگا، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. یہ ساری رعایتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے رکھی ہیں. اب اس کے بعد انہیں یہ کرنا ہے کہ اگر ان کی صحت ٹھیک ہو جائے تو وہ روزے کی قضا کر لیں. ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہے. البتہ وہ لوگ جو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں یا ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جن کا صحت مند ہونا ممکن نہیں ہے، ان کے لیے ہر روزے کے بدلے فدیے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے جو ہم اور آپ کھاتے ہیں، یا کیش یا غلے کی شکل میں صدقہ فطر کی جو مقدار ہم اور آپ دیتے ہیں، ہمارے یہاں 2 کلو 200 گرام ہے، وہ اسے دے دی جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی خوراک کا انتظام کر دے. بہتر یہ ہوگا کہ اسے کھانا کھلا دیا جائے صبح و شام. اس سے کم بہتر یہ ہے کہ اسے غلہ دے دیا جائے اور کچھ پیسے بھی دے دیے جائیں، کیونکہ ہم گندم دیں گے تو گندم سے تو خوراک بنتی نہیں ہے. خوراک کے لیے روٹی چاہیے، چاول چاہیے اور کوئی لکوڈ چاہیے، شوربہ چاہیے، دال چاہیے. تو اس طرح سے اس کے لیے بھلا بھی ہوگا اور ہمارا روزہ بھی پورا ہوگا. صدقہ فطر بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. صدقہ فطر کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس سے غریب اس لائق ہو جاتے ہیں کہ اس خوشی میں شریک ہوں. دوسرا اس کا سب سے بڑا مقصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے ان خامیوں کا معاوضہ ہو جاتا ہے جو روزے کے دوران ہو جاتی ہے. آپ کے گھروں میں بہت ساری کمیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہماری ذات سے بھی بہت ساری کمیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو صدقہ فطر سے اللہ تعالیٰ اس کمیوں کو دور کر دیتے ہیں. اس لیے جتنا زیادہ لوگ دے سکتے ہیں دینا چاہیے. اس میں یہ کیٹیگری نہیں بننی چاہیے کہ ہم نہیں دیں گے یا ہمارے پاس نہیں. اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیں، وہ آپ کے روزے کا کفارہ بنے گا. جو بالکل نہیں دے سکتے وہ لے لیں گے. محترم حضرات، اس وقت ملک کے حالات کی تناظر میں ایک بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ سامنے الیکشن ہے اور یہ الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں ہوگا. یہ سیکولرزم اور آئیڈیالوجی کے درمیان ایک مقابلہ ہے. اب اس وقت جو الیکشن ہونا ہے اس کی جیت اور ہار سے یہ طے ہوگا کہ ہندوستان میں قانون چلے گا، سیکولرزم چلے گی، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہوگی، یا پھر کوئی خاص آئیڈیالوجی سب پر تھوپی جائے گی. اب مسئلہ یہ نہیں رہ گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آ جائے گی تو کیا بگاڑ لے گی، یا یہ کہ اس کی وجہ سے سارے پریشان ہوں گے. ہم نے 10 سالوں میں دیکھ لیا کوئی پریشان نہیں ہے، سب مست ہے. سب کے سامنے بس ایک چیز بھیج دی گئی ہے یا پروس دی گئی ہے، وہ ہے آئیڈیالوجی. اپنی ثقافت، اپنی پہچان. اور مسلمانوں کی جو صورتحال ہے
अगर इस पर काम न हुआ तो हमारे 20 से 30% मुसलमान ऐसे हैं जो हाथ से निकल जाएंगे, वो उन्हीं के रंग में रंग जाएंगे। हर एक का एक रंग होता है। इस्लाम का एक रंग है जिसको अल्लाह ताला ने सिबगतुल्लाह कहा है, अल्लाह का कलर। मुसलमान अल्लाह के रंग में रंगा हुआ है, यानी अल्लाह ताला अपने अंदर जितनी सिफात रखता है, एक मुसलमान उसका मजहर होता है, उसका इजहार करता है। लेकिन हमारा ये कलर मध्यम पड़ जाएगा। लोग त्योहार भी मना लेंगे और उन्हें जरा बराबर उनके माथे पे शिकन भी नहीं आएगी। अपनों के खिलाफ बोलेंगे। आप आए दिन देखते होंगे कि मुसलमान लड़कियां, मुसलमान लड़के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भी बोलते हैं। कमियां हमारे अंदर होती हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान बहुत बेहतरीन कौम बन के इस वक्त दुनिया में है। लेकिन एक मुसलमान की बुराई नहीं करता बल्कि उसकी इस्लाह करता है। लेकिन आज मीडिया पर आप आए दिन देखते होंगे कितना बदनाम किया जा रहा है, दूसरे भी बदनाम कर रहे हैं। तो इस इलेक्शन में हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, ये होगी कि हर कोई इसमें हिस्सा ले और दूसरों को उभारे। एक नैरेटिव पैदा करने की जरूरत है। हम एक सिविल सोसाइटी हैं, हम कोई पार्टी नहीं है। हमारी जुबान से किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं हो सकती, हम किसी कैंडिडेट के खिलाफ बात नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नैरेटिव पैदा करें, एक मुकालमा पैदा करें, बातचीत का एक माहौल पैदा करें। किस बुनियाद पर हम किसको नहीं चाहते वो बुनियाद पेश करें। आप ये बात पेश कर सकते हैं कि इस मुल्क में अच्छे दिन आने थे, कहाँ गए, हमें नहीं दिख रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए जो अच्छे दिन लाएं। हमें पैसे मिलने वाले थे, हमारे मुल्क के सारा काला धन आने वाला था, वो नहीं है। हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो अपनी बात से मुकर जाए। हमें नैरेटिव पैदा करने की जरूरत है। अक्सरियती समाज में आप किसी के खिलाफ जबान खोल करके आगे नहीं जा सकते। आप किसी पार्टी को टारगेट कर दें, किसी पर्सनालिटी को टारगेट कर दें और ये कहें कि इनको नहीं जीतने देंगे, आपकी क्या वकात है, आपकी कोई हैसियत नहीं है। किसी जमाने में हमें कहा जाता था कि ये ऐसे लोग हैं जो असरअंदाज होते हैं। अब हमने देख लिया कि हमारा कोई असर नहीं हो रहा। तो इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। मसला ये नहीं है कि कोई आएगा तो जीना दुबार हो जाएगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। मसला ये है कि हमारी पहचान और शनाख्त मिटने की बात है। हमारे मदरसों के खिलाफ टारगेट किलिंग हो रही है, मस्जिदों के खिलाफ हो रही है, हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं उनके खिलाफ हो रही है, हमारे जो त्योहार हैं उनके खिलाफ बातें हो रही हैं। यानी इस मुल्क में एक तबका ये चाहता है कि यहाँ मुसलमान रहे, अपनी नमाज भी पढ़ ले, अपना सलाम कलाम भी करे, लेकिन उसकी पहचान होनी चाहिए। तो ये जाहिर है कि सारे लोग उसमें तो ढल जाएंगे, हम ही बचेंगे। हम तो ढल नहीं सकते। तो हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। एक तरफा आप वोट दें, मिलजुल करते हैं, सबको दिलाएं। अब वो दौर नहीं रहा कि वो हमारे रिश्तेदार हैं तो वो हमारे पसंदीदा हैं तो वो हमारे फला हैं, वो जब था तब था। अब इस वक्त ये है कि किसको हम जिता दें कि इस वक्त मेजॉरिटी में कोई हुकूमत न बने। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। इस मुल्क को अगर बनाना है, इस मुल्क में सेकुलरिज्म को अगर आगे बढ़ाना है, इत्तेहाद इत्तेफाक को आगे बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम को साथ साथ चलने पर तैयार करना है, तो हमें और आपको तय करना होगा। हमारी तादाद कम नहीं है। बाज़ जगहों पे सर्वे के हिसाब से लोग बताते हैं कहीं हम 50% है, कहीं 40% है, कहीं 60% है और कहीं तो हम 10-20% है। तो इसके असरात होते हैं। लोग 500-600 वोट से आजकल हार रहे हैं। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरा पैगाम है कि इस इलेक्शन को आप सीरियसली लें। अगर सीरियसली नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा मसला होगा। खाने का मसला नहीं है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो हमारे खाने का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर ही देगा, वो भूखों नहीं मारेगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा मजहब,
हमारा कल्चर, ये सब मुतासिर होने वाला है। तो इंशाअल्लाह हम ये नहीं चाहेंगे और आप भी नहीं चाहेंगे। और आखिरी बात ये है कि हमें अपने माहौल को, अपने मुआशरे को एक बेहतर मुआशरा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस मुआशरे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कश्ती से ताबीर किया है और कहा है कि कुछ लोग इसमें हो सकता है कि वो किसी वजह से, हो सकता है उनकी जायज समझ हो। यानी आपने ये बताया कि भाई नीचे वाले ऊपर जा जाके जब पानी लेने आते जाते हैं तो ऊपर वालों को दिक्कत होती है कि यार हम सो रहे हैं, आप खट खट कर बाल्टी लिए चले आए। तो उस दिक्कत से बचने के लिए उन लोगों ने कहा कि अब हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे ही एक सुराख कर लेते हैं कश्ती में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसके नतीजे में सारे डूबेंगे। हो सकता है किसी के पास जायज वजह हो कि मैं अपने मुआशरे के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, मैं अपने खानदान के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, अपने गांव के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, अपने मस्जिद और मदरसे के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। हो सकता है कोई जायज वजह हो, लेकिन खुदारा ये मत करिए, अपने जज्बात को थोड़ा काबू में करिए, वरना जब कोई चीज डूबेगी तो पूरा मुआशरा डूबेगा। ऐसा नहीं है कि एक मस्जिद खत्म हो जाएगी तो फिर आप अपनी अपनी मस्जिद बना लेंगे, फिर आपको भी घर ही में रहना होगा। एक मदरसा बंद हो जाएगा तो आप अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों पढ़ा लेंगे, फिर सारे जाहिल होंगे। ये कॉमन सेंस है, हमें अपनी जाती दुश्मनी को कम करना चाहिए। देखिए दुश्मनियां हो जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, मारपीट हो जाती है, लेकिन उसको लाइफ टाइम का शेड्यूल नहीं बनाया जा सकता है। आप वक्ती तौर से बच्चों को आप देखें, बच्चों को कहा गया ना कि वो बच्चा जो है फितरत पर पैदा होता है। यानी अल्लाह ताला ने जो नेचर, जो फितरत बनाई है उसके मुताबिक बच्चा पैदा होता है। बच्चा करता क्या, लड़ता हर वक्त है, लेकिन फिर एक दूसरे का साथी भी हो जाता है, गम भुला देता है, दुश्मनी भूल जाता है। वही हमें भी करना है। अगर कभी किसी मसले पर नाराजगी हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, ठीक है, उस मौके पर कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, हो गया होगा, लेकिन ये चीज पायदार नहीं होनी चाहिए, उसे कमजोर करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में इस खुशी के मौके को बेहतरीन तरीके से मनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ मुसलमान परेशान हैं, उनके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। उनके लिए रोना धोना ये कोई मसला नहीं है। खुद अभी लेटेस्ट जो न्यूज आई है कि वहाँ के जो सरबराह है फिलिस्तीन के, उनके बच्चों की शहादत, उनके पोते की शहादत की खबर आई, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया, वावेला नहीं किया। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। यानी उन्होंने कहा कि हमारी हिम्मत को कोई तोड़ नहीं सकता। वो अपने काज के लिए, अपने मिशन के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है किसी को लगता हो कि बिला वजह जो है सांप के मुंह में बिल में हाथ डाले हुए हैं, लेकिन हर आदमी अपने हालात को बेहतर समझता है, दूर के लोग उतना बेहतर नहीं समझ सकते। तो उनके लिए दुआ करें। उनके गम में खुद गमगीन बन के बैठना कोई मसले का हल नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्ली मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इबादल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अज़्ज़ व अजल्ल व अतम व अहम व अज़म व अकबर।